Joining me today are Zoya Hussain, Anshuman Pushkar, and Pawan Malhotra. We're going to be talking to them about their latest series, that's Grahan. Hello and welcome, everyone. Hi. Thank you. Hi, good to meet you. Hi, good to connect. I want to start off with what was the appeal of this series to you particularly? And I want to start it off with Pawan sir. See, for me, it was a very exciting project. It's I was told this is how 84, of course, 84 novel पे based है, लेकिन 84 novel एक हिस्सा है इस project का. You know, we take it beyond that. वो 80s की बात है और इस basically एक कहानी रोमांस की है, एक young romance, फिर एक फादर और बेटी का रिश्ता, you know. तो मैं जैसे I'll put it up कि ये इश्क से वात्सल्य तक लेके जाता है आपको, you know. So वो पेरेंटल लव तक. और मेरे किरदार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि उसने वो जो उसका यंगर पीरियड था उसमें कुछ खोया है जो अब दोबारा वो खोना नहीं चाहता. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपने कुछ नहीं किया पर आसपास सिचुएशंस कुछ ऐसी बन रही थी कि आपकी लाइफ, आपकी गाड़ी थोड़ी सी हिल गई, डिस्टर्ब हो गई, तो आप उससे तो चलो हट के दूर निकल आए जो भी, तो आप फिर नहीं चाहते कि फिर से कुछ नुकसान हो. सो वो जो एक ये बेसिकली रिलेशनशिप्स की कहानी है. ये कहानी है दिए की और तूफान की. Alright, beautifully put, beautifully प्यार put. का दिया है जिसको आप दोनों हाथों से यूं रखे हुए हैं कि इससे हवा ना लगे. Lovely. I love that metaphor. Zoya, you made such a big splash with Mokabaz. I'm sure everyone's expecting you to join like some big budget film that will release in the theaters, but you've taken the OTT way, you've taken a choice to star in a series. So, why did you make this decision and what was the appeal of the series to you? I mean, honestly, it wasn't a conscious decision that, okay, this is what I don't want to do and this is what I want to do now. It's just how things have progressed in terms of chronology. After Mokabaz, I mean, I had 2 more releases. I've worked on a couple of things, and it's a mix of film. And actually, this was the first show that I took on. After this, there's more stuff. So it's just the way things have released. It's not a conscious decision. Having said that, I thought that this would be a wonderful opportunity for me. I really love the way Ranjan writes and what he has to say, and what a cool part. Quite honestly, it's a very selfish reason. There's no great like rocket science behind it. I read they narrated the story to me. I read the script. I loved the part. I felt that there's a lot of scope for me to push myself. I loved the interpersonal dynamics of the characters, and why would you not do it? I know. You must, being a writer yourself, I'm sure the writing held a lot of importance for you. So if you're saying it and it has your seal of approval. I don't claim to be some great writer, okay? Hopefully I will be able to be one, but far from that right now. But okay, you're a writer, which is a great thing by itself. Great writer or not, we'll see soon. And Anshuman, the same to you. What was the appeal of the show for you? There was everything in that particular story that will definitely intrigue you for that adopting, accepting that thing. But हर एक बार ऐसा नहीं होता है. आपको लगता है कि मैं नहीं उस कंडीशन में हूँ आज के दौर में कि मैं कोई चॉइस ले सकूं, लेकिन अगर जो आपके सामने चांस के रूप में वो चॉइस आ रही है तो आप दोनों हाथों से उठाना चाहेंगे. 84 नॉवेल जो सत्यव्यास जी ने लिखी है उसका ये किरदार हो या पूरी 84 नॉवेल के किरदार हो, और साथ ही साथ जो ताना बाना बुना गया है 2 कीरा के साथ में, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको इस कहानी के लिए अंदर में वाइब्रेशन नहीं पैदा करेगा, स्पंदन नहीं देगा आपके जीवन में. तो कुछ एक ऐसा खूबसूरत किरदार, एक ऐसी खूबसूरत स्टोरी जो ऑलरेडी आपके सामने रखी गई है. तो मेरे तो जो जिस दिन ऑडिशन हुआ था मेरा इसके लिए, मैंने सुना था कि लोगों को स्लीपलेस नाइट आती हैं, नाइट्स देखने पड़ते हैं, और मेरे साथ एक्चुअली हुआ था. मैं अपनी मेरी 6 साल की भतीजी है, मैं उसको ऐसे उंगलियां पकड़वा के कह रहा था कि देख ये होगा या नहीं होगा, और उसने नहीं वाला पकड़ा था और फिर मैं सो गया, हो गया, बंटा था. तो इस तरीके से अंदर चल रही थी चीजें उस दौरान, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मेरा पहला प्रोजेक्ट रहा था मुझे कोई इस नजर से दिखेगा कि ये इतना संजीदा, इतना सेंसिबल, इतना डेप्थफुल और इतना इंटरनली कॉम्प्लेक्स इंसान जो अपने आप को इतने प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए जानता है, जो इतना इनोसेंस भी रखता है, वो कोई मुझ में देखेगा. तो टचवुड वो ऐसी चीजें हुई है, और मैं तो चॉइस की कंडीशन में ही नहीं था, मैं तो आई वाज फॉलिंग फॉर इट.
Okay, so then let's talk about the period of time in this. There's the present story that's set between the father and daughter, and there's the yesteryear love story between Anshuman and Vamika. So Anshuman, tell me about it. What were the challenges that enacting that era presented to you? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, अगर जो उसकी पहले की चीजें आपके सामने हो तो मुश्किल तो होता है, क्योंकि उस समय पवन सर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने एक पीरियड देखा है ऐसा कि उस समय का इनोसेंस और आज का इनोसेंस काफी चेंज हो चुका है, काफी चीजें बदल चुकी हैं। एक अभी रंजन सर पिछले इंटरव्यू में थे, उन्होंने काफी बेसिक चीजों से समझाया कि जो सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने में भी चीजें काफी बदल गई। स्थायित्व चीजों के साथ बहुत नहीं रह गया है, वो स्टेगनेंसी नहीं रह जाती है चीजों में आज के दौर में। लेकिन उस दौर में जब आप पहुंचते हैं तो प्योरिटी, द डेप्थफुलनेस एंड एवरीथिंग, यस वी फील द सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन स्टिल, फॉर इफ देयर इज अ वर्ड कम लव एंड देयर इज अ वर्ड कम हेट एंड एवरीथिंग। दो अलग अलग इरा में आप जी रहे हो और आपको उस इरा में जाना है जो आपने देखा नहीं है। तो हमारे पास हिंदी फिल्में हैं, डेफिनेटली हमारे पास किताबें हैं जो उस जगह पे लेके जाती हैं, बट इन सब चीजों के अपार्ट सत्यव्यास जी ने जो नॉवेल लिखी है, हमारे साथ ये प्लस पॉइंट था कि मेरे पास अभी तक जितने काम मैंने किए हैं या मुझे मिल रहे हैं आगे, तो एक परसेप्शन है जो राइटर ने लिखा है, लेकिन वो मनोभाव एग्जैक्टली व्हाट ही इज एग्जैक्टली फीलिंग एंड व्हाट द सरफेस पेरिफेरी अराउंड हिम इज गोइंग ऑन, वो सारी चीजें क्या है, अलग सा क्या हो रहा है, क्या उस घर में किस तरीके का लोटा रखा हुआ है और क्या उसकी ग्लास कैसी है और किस कलर का है, ये हर एक चीज महसूस कराने की कोशिश की है अपनी नॉवेल में सत्यव्यास जी ने, जो 84 नॉवेल है जिसपे हमारी ग्रहण है। तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि वो बुक थी मेरे पास, और उस बुक को आप जितना, जैसे अभी तुरंत पवन सर ने इस चीज को बोला कि स्क्रिप्ट में ही सब कुछ होता है, तो उस बुक में सब कुछ है जो उस कैरेक्टर के बारे में, उस इरा के बारे में बताया, सिर्फ आपको उस जगह पे जाने और महसूस करने की जरूरत थी। साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर रंजन सर, शैलेंद्र झा जी हैं, और पूरी प्रोडक्शन टीम जो है, एक एक मोमेंट पे, चाहे वो प्रोडक्ट जहाँ पे वो सेट बना हुआ था, वो चीजें, वो सब कुछ रिलीव करने के लिए आपको मजबूर करती हैं कि आप सीरियसली उस इरा में पहुंचे हुए। और आपके जब वामिका जैसी एक्टर हो आपके साथ में, अभी अभिनव थे, जितने भी हमारे को एक्टर्स थे जिन्होंने एक एक मोमेंट पे उस चीज को वहां तक आपकी इमोशन को, आपकी फीलिंग को पहुंचाने में मदद की है, तो डेफिनेटली थोड़ा हल्का हुआ था। मुझे लोग बोलेंगे कि हाँ मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे आसपास में इतने खूबसूरत लोग थे जो मुझे हमेशा उस जगह पे पहुंचा रहे थे। Thank you for giving us a glimpse into how you approach that character. And Zoe, I want to ask you, playing a police officer, I'm sure you would have had to work on your body language. What else did you have to kind of work on when it came to this character? A lot of things, yeah, because normally our references for things like this are from other films and from, already, from pictures or whatever, but we often just don't use life around us. You can, just because she's an IPS officer, and of course, Ranjan gave me a lot of references of actual, women police officers, and they are extremely charismatic people as well. I mean, man, it's hard work as a woman to get there. There's very few women out there. It makes you a certain way, you're competing in a completely man's world, so it makes you a certain way, but they can still be this softer, vulnerable. I mean, you're also like a wife and a mother and a daughter and a child and all of these other roles that all of us do play in life, and we have contradictory traits always, and that's what we wanted to do with Amrita as well. And of course we're storytellers and this is a work of fiction, but it is a uniform that you must honor as well and not be irresponsible with how you go about doing it. So we had a wonderful Pooja Saroop, who's a fantastic actor in her own right. She did a lot of workshops with us. We did work a lot on the body language and the kind of command that one has when you are in a position like that, that kind of designation, and you walk into a room and you know what you're supposed to do. It takes a certain amount of focus, determination, and grit. So there was a lot that I had to do for that, and I hope I have been able to do justice to it. Apart from, of course, the emotional side of things and the more storytelling side of things. Yeah, and coming to the emotional side of things, the father-daughter bond features very prominently in the series. So, Pavanji, I want to ask you, you've of course acted in a lot of films, you've done a lot of work, but when it comes to depicting a bond like this on screen, and the kind of series like hinges on this father-daughter bond, do you also have to work on an off-screen bond? Work on off-screen bond, ऐसा तो मतलब
I won't say कि मैं कुछ example रख के चल रहा था. See, I don't have my own biological children, but I love children. खैर ये child तो बहुत बड़ा है जो कि हम दिखा रहे हैं. पर of course ये देखिए ये एक instinctive है parent child जो relationship है, या when you feel किसी के लिए कि child, you know, कि हम जैसे अगर हम तो वो वाले स्कूल के अगर किसी को बोला बेटी तो फिर वो बेटी है, या बहन बोला तो वो है, हम वो पुराने स्कूल के लोग हैं, यू नो. सो वो इमोशन एज एन एक्टर तो चलो सब लोग करते हैं, पर ये इमोशन तो आपके अंदर इनबिल्ट है व्हेन यू आर बोर्न, कि आप जब एक सर्टेन एज होगी, ऑफ कोर्स एज आप 10 साल का बच्चा अभी, पर देखिए 10 साल का बच्चा भी है, उसका छोटा बहन भाई होगा तो वो कैसे प्रोटेक्टिव होते हैं, मदर फादर एक्सटिंक्ट होता है, तो वो तो हम सबके अंदर है. उसको सिर्फ एक जगह थोड़ा सा हल्का सा हाथ मारना है तो वो आएगा ऊपर. तो ऐसा नहीं कि उसके लिए मुझे कुछ एफर्ट अलग करना पड़ रहा था, यू नो. और प्यार लव किसी को आप सिखा थोड़ी सकते हो, वो तो है आपके अंदर, गुस्सा है आपके अंदर, 7-9 रस तो है ना हम सबके अंदर, उसमें भक्ति रस भी है, और सब हर रस का आपको मजा लेना चाहिए, वो है. उसको सिर्फ राइट टाइम पे एक्टर का यही है कि उस कौन से रस को इस वक्त राइट टाइम पे आप टैप करके सामने लाते हो, यू नो. और उसमें बहुत सारी चीजें आपकी मदद भी करती हैं, ये भी बात सच है. हर रोल देखिए डिफिकल्ट होता है, कोई आसान नहीं होता, सब चीज मुश्किल है, क्योंकि हर चीज नहीं है और हर बार नर्वसनेस होती है, ये बात सच है. I think that's what keeps your work so fresh on screen, sir. Anshuman, your character is based in a previous era, and they play characters in the present era. Do your storylines connect? Did you get a chance to work with Pawan and Zoya? नहीं, मैं अगर जो उस समय में हूँ, अगर जो 84 में मैं हूँ और अभी कभी के करंट सिचुएशन में पवन सर हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ में कोई काम करने का मौका नहीं मिला. Okay. प्रोमो किया है मैंने अभी तुरंत पिछले इंटरव्यू में बोला था, प्रोमो किया है और उनमें उसमें मौका मिला, और मुझे हमेशा मैं उनका काम जा के देखा करता था. जब भी मुझे मौका मिला, गलती से हमारे कभी शेड्यूल साथ में भी नहीं थे, तो एक दिन जोया को देखने का मौका मिला तो मैं खड़ा होकर देख रहा था. एक दिन मुझे पवन सर को देखने का मौका मिला तो पवन सर को 2 बार देखना मैं, क्योंकि देखिए पवन सर अपने आप में स्कूल है, वो कहने की वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आप सेट पे वाइब्रेशन इनकी होती है, लोग बात करते हुए मिलेंगे. जोया के लिए मेरा बहुत ही मतलब मैंने मुक्काबाज जब से देखी तो मुझे मतलब बहुत पसंद आई थी, क्योंकि बिना बोले इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया. तो एज ए स्टूडेंट मैं किसी भी अपने साथी कलाकार को भी देखता हूँ, वहां पे जब भी मुझे मौका मिला है तो मैंने कोशिश की थी कि इनके जो ये किस तरीके के प्रिपरेशन में जाते हैं, मैं उनसे जब भी मौका मिलता है मैं बात करता हूँ, पर साथ में काम करने का मौका मैं चाहूंगा कि जल्दी मिले मुझे लोगों के साथ. All right, excellent. It was great talking to all of you, and I'm really looking forward to catching the series. Thank you for joining me today. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you so much.